सी और यहाँ पर आया है तो व्हाइट बोर्ड आया है. This call is now being recorded. Choose from try start and white. Let me see how it works. If it is good, then creating jam. So then it gets in the side. So this is the online whiteboard. Okay, we can have a lot of things over here. We can do. Okay, and it is flexible also. Okay, what else we can do? Sticky notes is also there. Then we can insert the image also. Okay, then ठीक है चलिए इसे whiteboard है आपका text है. Okay, then what is this? Wow, good. तो चलो है ये वी कैन यूज इट लेटर. ठीक है, तो एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, आप लोग को भी ध्यान में रहे. ओके सो हम लोग कहाँ थे? हाँ यहाँ पर थे. सो वी स्टार्टेड विद दिस मोबाइल ट्रांसपोर्ट लेयर. इन दैट वी टॉक अबाउट द टीसीपी एंड यूडीपी. In TCP and UDP, we compared both of it, and then we came to the point that your TCP is much more complex and needs special mechanism to be useful in the mobile environment, because we had a communication regarding that the same thing, you know, whatever setup you were using in the wired network cannot be used in the wireless also. It was the common point which we have notices from the, you know, when we started this topic. Okay, so now after that ये हम लोग ने देखा then traditional TCP. The traditional TCP has a lot of mechanism, like it has a congestion control, it has a slow start, it has a fast retransmit, fast recovery. Then you know, implication on mobility, इनके mobility की वजह से भी packet drops होते हैं. तो ये सारी चीजें, सारे mechanism we have already seen the traditional TCP. Okay, अब now just try to understand the need of the classical TCP. Now we have the next one that is classical TCP improvement. We have the next topic that is classical TCP improvement. Why this topic is there? Classical TCP improvement, or we can say, or we can simply say that why there is a need of the classical TCP. यानी कि जो existing TCP है which is working very fine, okay, but इसका requirement क्यों है? Classical TCP का requirement क्यों है? ठीक है, as you can see now, because you know, because the introduction of the wireless LANs and the wireless network, you know, we have to increase the performance of the TCP. Okay, we have to increase the performance of TCP in the wireless and mobile environment. Okay, it will work. Okay, it will work in that particular environment also. Your existing TCP, just try to understand what I'm telling you. The existing TCP, whatever they have designed for the wired network, will also work for the wireless and mobile, you know, environment. आपका मोबाइल एनवायरनमेंट है, आपका आपका वायरलेस एनवायरनमेंट है, उसमें भी काम करेगा वो, लेकिन उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा. ओके, जब अगर उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता है, देन वी नीड समथिंग बेटर. ओके, we need something better which can work in the wireless and the mobile environment also. Okay, so for that new inventions are done. Okay, new mechanisms are introduced. And okay, and out of these mechanism and out of these TCP, the first one is the indirect TCP. As you can see, first is the indirect TCP, second is the snooping TCP, third is the mobile TCP, fourth is fast retransmit, fast recovery. Okay, then we have a transmission, timeout freezing, and selective transmission, retransmission. So these are, you know, these are a few mechanism, or we can say these are a few methods which are introduced in order to increase the TCP performance, in order to increase the TCP performance in wireless and mobile environment, in mobile and wireless environment. Okay, तो बेसिकली इसके क्लास जो इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है एग्जिस्टिंग टीसीपी में, जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दैट व्हाई वी आर डूइंग द इम्प्रूवमेंट इन द क्लास इन द एग्जिस्टिंग, दैट इज द ट्रेडिशनल. याद रखो, whenever I am using the traditional TCP word, it means that the existing वाला. ओके, एंड जब भी मैं कोई न्यू जब इम्प्रूवमेंट की बात करूं, आउट ऑफ दिस इनडायरेक्ट टीसीपी, स्नूपिंग टीसीपी, मोबाइल टीसीपी, ये सारे के सारे क्या है? दीज आर दी
क्लासिकल टीसीपी इंप्रूवमेंट, तो ये एग्जिस्टिंग यानी कि ट्रेडिशनल टीसीपी में क्या है, इंप्रूवमेंट्स हैं, और इंप्रूवमेंट्स करके उनके जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको मतलब दे हैव ट्राइड टू रिमूव दोस फ्लॉज, okay, and they have made a new technique, okay, like they have introduced indirect TCP, snooping TCP, mobile TCP and all that, okay. So we will learn all these things one by one, okay. We'll try to complete this first two, one that is indirect TCP and snooping TCP, okay. If time permit then we will start with this one. चलो, अब आई थिंक आई होप दैट आपको इसका पर्पस समझ में आया होगा कि व्हाई दिस अ क्लासिकल टीसीपी इंप्रूवमेंट, ओके. व्हाट इज दिस बेसिकली क्लासिकल टीसीपी इंप्रूवमेंट, ओके. दिस क्लासिकल टीसीपी इंप्रूवमेंट्स are are introduced in order to, these improvements are done in order to increase the performance of the traditional TCP. आपके ट्रेडिशनल पुराने वाले के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए, एंड वी आर गोइंग टू लर्न all and we are going to learn all these improvements. We are going to learn all these improvements one by one, okay. So let us start with this, the first one. First मैं एक काम करता हूँ, I will try to explain this thing with the help of the pen and paper, okay. So अगर आपको ठीक लगे तो मुझे रिप्लाई करना, बताना मुझे कि you feel good or not. चलो स्टार्ट करते हैं. I hope you people can see my paper and pen, right? Please reply me so that I can proceed with the same. Yes, okay. Thank you so much. Okay, so let us come to the classical TCP improvement topic. Okay, as I told you that we have, we have existing, we have a classical TCP improvements, and out of those improvements, the first one is indirect TCP. So that is quite, very difficult for me to write the things because I have to align the things also. So I have indirect TCP, okay. I have snooping TCP, I have mobile TCP and all that, okay. So instead of writing all of this, मैं एक एक करके लिखता हूँ, ठीक है. So first of all, I will start with the indirect TCP, okay. So according to the indirect TCP, ITCP segments the TCP connection into fixed part and the wireless part basically, okay. So the very first point what indirect TCP says, indirect TCP को मैं अब क्या बोलूँगा, ITCP, okay. In short, it is called as ITCP. It is looking fine or it is blurred, थोड़ा सा हल्का सा blurred है, but अब मैं इसको इतना ही कर सकता हूँ. यहाँ पर ऑटो फोकस वगैरह का नहीं ऑप्शन. लेट मी सी अगर कुछ ऑप्शन है कि सेटिंग में चेक कर लेता हूँ. नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर. ठीक है, मैनुअल फोकस करना पड़ा इसको. So as far as your ITCP is concerned, your ITCP segment a TCP connection into fixed part and the wireless part, okay. So for example, if you have this TCP box, okay, अगर आपका ये TCP है, तो according to the ITCP, which is the classical improvement in the existing TCP, it divides the TCP into fixed part, I say fixed part and the wireless part, okay. तो ये रहा आपका फिक्स पार्ट और ये रहा आपका वायरलेस पार्ट. आई थिंक दिस इज विजिबल. सो दिस इज द फिक्स पार्ट में आपको छोटे से डायग्राम बताया, एक्चुअल डायग्राम आना बाकी है हमारा. द डायग्राम आई विल एक्सप्लेन, ओके. सो indirect TCP, the very first point, indirect TCP divides the TCP into fixed part and wireless part. Very first point, ठीक है. Second point, divide or segment, ठीक है. Divide TCP into this one, ठीक है. First point. Second point says your mobile host is connected via wireless link and the access point to the wide internet where the correspondent host reside. तो बेसिकली सेटअप वुड बी लाइक, मैं आपको पहले सेटअप बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा. सो दिस इज योर मोबाइल, दिस इज योर व्हाट आई कैन से करस्पॉन्डेंट नोड, ओके. ये आपका
आपका फिक्स्ड नोड है, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जो आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, यू कैन सी दिस डेस्कटॉप एंड यू हैव अ वायर्ड नेटवर्क ओवर हियर, ठीक है, ये आपका वायर्ड नेटवर्क है, बीच में राउटर्स है, ठीक है, सो यू आर कनेक्टेड विद दिस वन and this router is connected with the access point. Say this is the access point, okay, maybe any device, ये आपका access point है, access point बोलो आप इसको, access point या फिर foreign agent, ठीक है, foreign agent, FA में सिंपल लिखता हूँ बिकॉज ये अपने नेटवर्क से बाहर आया तो ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज अ फॉरेन एजेंट. सो दिस इज माय करस्पॉन्डेंट रूल, आई विल राइट CN. आप लोगों ने आपने मोबिलिटी के अंदर आईपी पैकेट डिलीवरी में सारे टर्म्स पढ़े हैं. IP packet delivery में you have done all the terms, you know, like home agent, foreign agent, home network, foreign network, then correspondent node, mobile node, ये सारे terms आप लोगों ने पढ़े. So this is the correspondent node. So this is the wired network. I will write wired network or fixed network. Okay, this is the fixed network. Okay, and I'm connected with this access point. That is the foreign agent. Okay, and I have a mobile host over here. ठीक है, so मैं मेरे पास में एक मोबाइल होस्ट है. So this is my laptop. Okay, I will call it as a mobile host. Okay, या फिर mobile node. Okay, so this is my mobile node and this is my access point, this is my correspondent node, and your mobile node is connected with this particular foreign agent or access point with wireless TCP. Okay, just try to mark my word, this is the wireless TCP, wireless TCP. एक सेकेंड. Okay, so I think you have understood the diagram of this. This is the actual diagram of ITCP, that is indirect TCP. What happens in the indirect TCP? We have divided the complete TCP into two segments. We have into the two section. One is the wireless section and second is the fixed section. ये diagram बताने का purpose आप लोग समझ गए होंगे. As you can see, this is the यहाँ से इतना part है आपका, इतना part, ये सारा का सारा part आपका किसका है? ये आपका fixed part है. This is the fixed part. ओके, मैंने बहुत ही फेंट लाइन बनाया हूँ एंड यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है दिस इज द वायरलेस पार्ट, वायरलेस पार्ट. ओके, वायरलेस पार्ट और वायरलेस सेक्शन. सो व्हाट इज द सेटअप? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेटअप. वी हैव एक्सेस पॉइंट. ओके, एक्सेस पॉइंट कैन बी एनीथिंग. आपको एक्सेस पॉइंट से परेशान नहीं होना है. आपके घर में जो वाईफाई राउटर लगा हुआ है ना, आपके घर में जो वाईफाई राउटर लगा हुआ है वो भी एक एक्सेस पॉइंट ही है, ठीक है. सो एक्सेस पॉइंट इज एन, यू नो, यहाँ पर आपका डिवाइस से कनेक्टेड है, which is connected to the correspondent node also, which is connected via wired network. बीच में राउटर लगे, यहाँ पर राउटर लगे, यहाँ पर राउटर, हो सकता है कितने भी राउटर लगे. दिस इज द कंप्लीट, यू नो, वायर्ड नेटवर्क. और यहाँ पर जो आपका नेटवर्क है, ये जो आपका नेटवर्क है, ये आपका वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है, बिकॉज योर मोबाइल नोड इज कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट, ठीक है. So this is the setup or this is the diagram for your indirect TCP. Okay, now I will tell you the things which you will understand it clearly. Okay, here mobile node is connected via wireless link. Your mobile node is connected via wireless link and access point to the wired net internet where the correspondent node is reside. Okay, your mobile node is connected with the access point via wireless link and your access point is also connected with the correspondent node via wired network. So in this way, you need to explain when you will write the answer in the examination. Then you will have to explain this diagram also. Okay, a standard TCP is used between the fixed computer and the access point. Okay, so यहाँ पर इसको हम लोग और क्या बोलेंगे? This is the standard TCP. This is the standard TCP. अच्छा, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं सब हम लोग काफी समझ में आएगा, ठीक है. No computer in the internet recognize any changes to the TCP. किसी को ये सेटअप करने से किसी को तकलीफ नहीं हुई. आपको पता है existing technology में we have learned this thing before also.
that if you are making changes in any technology, any standard, then changes आप ज़्यादा नहीं कर सकते, because lot of the devices and many devices has already adopted that particular change. Okay, और वो स्टैंडर्ड बहुत से लोग यूज कर रहे हैं. अगर आप उसको चेंज करने जाओगे तो क्या होगा, इतने सारे लोग जो यूज कर रहे हैं तो उनका नुकसान हो जाएगा, फिर उनको उस टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा. तो बहुत सारा मतलब कि वो प्रॉब्लमेटिक है. तो इसके लिए चीज़ों को चेंज ना करते हुए अगर आप कुछ चेंज लाते हैं और कुछ अगर आप इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, सो दैट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल. ओके, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और जो भी है. So this is the thing, and this means that the access point is now seen as the mobile host. This access point is seen as the mobile host for the fixed host. Okay, तो ये इसके लिए आपके करस्पॉन्डेंट नोड के लिए ये क्या है, ये मोबाइल होस्ट है. ओके, और आपका जो फिक्स होस्ट फॉर द मोबाइल, ये आपके मोबाइल नोड के लिए ये क्या हो जाएगा, ये फिक्स. मतलब बोलते हैं ना, ये अमीर है, ये गरीब है, और ये बेचारा मिडल पर्सन है. तो अमीर समझता है कि ये मतलब पुअर है, और जो आपका पुअर है वो ये समझता है कि ये अमीर है. तो ऐसा दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है. तो इसके लिए ये क्या है, ये इसका फिक्स नोड है. मोबाइल नोड के लिए ये एक्सेस पॉइंट क्या है, ये फिक्स नोड है. और करस्पॉन्डेंट नोड जो कि फिक्स है, इसके लिए ये क्या है, ये आपका मोबाइल नोड है. तो दोनों के लिए वाइस वर्सा है. So between the access point and the mobile host, or mobile node, a special TCP adapted to wireless link is used. Okay, and that changing TCP for the wireless link is not a requirement basically, and even an unchanged TCP can benefit from the much shorter round trip time also. ठीक है, जो बोलते हैं ना हम लोग यहाँ से जाके आने का टाइम, स्टार्टिंग रीट्रांसमिशन मच फास्टर. अच्छा, ये इसमें रीट्रांसमिशन का हम लोग एक एडवांटेज मिलता है. वो एडवांटेज आप लोग को मैं बताऊंगा कैसे एडवांटेज आता है. ठीक है, सो गुड प्लेस फॉर सेगमेंटेशन. आपके पूरे टीसीपी के अंदर सेगमेंटेशन डिवाइड करने की सबसे अच्छी जगह कहाँ थी, दैट इज द एक्सेस पॉइंट. यहाँ पर आपने सेगमेंटेशन किया और सेगमेंट करके, देखो ये पूरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसका खाली कंस्ट्रक्शन है, हाउ दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज मेड अप ऑफ. ओके, सो सबसे अच्छी जगह आप यहाँ पर अगर सेगमेंट करते तो कोई फायदा नहीं था, यहाँ पर सेगमेंट करते तो कोई फायदा नहीं था, यहाँ पर सेगमेंट करते आधा वायरलेस आधा टीसीपी, और फिर यहाँ पर फिक्स नेटवर्क भी है तो भी फायदा नहीं था. So the best place for segmentation was at the access point only. Okay, the foreign agent, that is access point, controls the mobility of the mobile node anyway, and can also hand over the connection to the next foreign agent when the mobile host moves on. Example: your mobile node is currently present in this particular location. Your mobile node is currently present at this location. अगर ये यहाँ से मूव होके यहाँ पे जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल नोड चला गया यहाँ पर, आई थिंक यू कैन सी दिस. हाँ, सो अगर आपका मोबाइल नोड चला गया यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ वाले एरिया को हैंडल करने के लिए दूसरा एक्सेस पॉइंट है. ओके, यहाँ वाले एरिया को हैंडल करने के लिए दूसरा एक्सेस पॉइंट है या फिर फॉरेन एजेंट है. ओके, सो वी हैव डिफरेंट एक्सेस पॉइंट और फॉरेन एजेंट फॉर द डिफरेंट एरिया. Okay, so when your mobile node moves to the different location, then what happen, it will be connected with the another access point or another foreign agent, and that will be connected with the wired network. ये आपके wired network से connected रहेगा. ठीक है, so अगर आपका mobile node कहीं भी move होता है, because we have already seen this is the part of the mobility only. Okay, अगर ये यहाँ पर भी जाकर आपके CN को यानी correspondent node को contact कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि you have achieved the mobility also. Okay, तो आपकी मोबिलिटी अचीव्ड है, आपकी मोबिलिटी काम कर रही है. अगर आप इसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप जगह से मूव नहीं हो सकते. तो देखो हम लोग ये लोकेशन से ये लोकेशन पे मूव होने के बाद भी वाया एक्सेस पॉइंट, वाया अनदर एक्सेस पॉइंट. अब बात इतनी है कि एक्सेस पॉइंट नंबर 1 था, अभी एक्सेस पॉइंट नंबर 2 है. That's only the difference. But this access point 2 is also connected with the wired network. Okay, so the main crux of this ITCP is that your TCP has been segmented into the fixed part and to the wireless part, and both your mobile node and your correspondent node are connected via access point, or we also call it as a foreign agent. Okay, and your mobile node thinks that your foreign agent, your access point is the fixed node, and your correspondent node thinks or imagine that your access point or foreign agent is the mobile node.
ये इसको मोबाइल नोड समझता है, ये इसको फिक्स नोड समझता है, दोनों के अपने अपने लेवल पे इनकी अंडरस्टैंडिंग। The correspondent node in the fixed network does not notice the wireless link or the segmentation of the, इसको नहीं पता कि भाई हम लोग ने डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे अलग पार्ट है, और इसको ये नहीं पता कि यहाँ पे अलग पार्ट है ना। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या मेंटेन किया है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है, ट्रांसपेरेंसी। ओके, उसके बाद में द फॉरेन एजेंट एक्ट एज द प्रॉक्सी एंड रिलेज ऑल डेटा इन बोथ द डायरेक्शन। Either your mobile node will send the data to the correspondent node or your correspondent node will send the data to the mobile node. In both the way, your access point, your foreign agent will act as a proxy। ठीक है, ये proxy के जैसा बीच में आएगा, और यहाँ पर इसका जब डेटा आएगा तो इसको लेगा, और फिर इसके बिहाफ में क्या होता है प्रॉक्सी में, दूसरे की आप अटेंडेंस मारते हैं ना, तो वैसे ही जब ये मोबाइल नोड आपका डेटा सेंड करेगा करस्पॉन्डेंट नोड को, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, when your mobile node will send the data to the correspondent node, then it will be received by the foreign agent first। Okay, your foreign agent will receive the data and will acknowledge, अभी आगे भेजा नहीं इसने, हाँ, ये अपने पास क्या करेगा, डेटा अपने पास में क्या करेगा, बफर करेगा। ठीक है, ये अपने पास में स्टोर करेगा, बफर करेगा, और फिर उसके बाद में इसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि मोबाइल नोड संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा कि भाई मेरा डेटा, मेरा पैकेट पहुंच गया। और फिर आगे अब आपका एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, फिर आगे करस्पॉन्डेंट नोड पे अपने खुद से भेजेगा, यानी अपने रिस्क पे भेजेगा। इन द सेम वे, when correspondent node, when your CN wants to send some data to the mobile node, okay, then it will send to the access point first। your access point will take the data, it will acknowledge first। okay, इसको acknowledge कर देगा, और यहाँ पे आपका डेटा आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है आपका, your access point or your foreign agent act as a proxy and it relays all the data in both the directions। okay, if the correspondent host send a packet, if the correspondent node host send, इसको मैं node बोलूँ या host बोलूँ, ठीक है, तो correspondent host भी चलेगा। okay, if the correspondent host send a packet, the foreign agent acknowledge this packet and tries to forward the packet to the mobile host। So when your correspondent node will send the packet to the foreign agent to the mobile node, then your foreign agent will acknowledge, क्या करेगा ये, acknowledge करेगा, और acknowledge करने के बाद क्या करेगा, it will tries to forward the packet to the mobile host, और यहाँ पर आके send करने की कोशिश करेगा। okay, so that is the scene। अच्छा, सेम सीन यहाँ से भी होगा, if the mobile host receive the packet, it acknowledges the packet। या इसको acknowledge कर दिया तो CN भाई साहब आपके एकदम खुश हो गए कि हमारा डेटा पहुंच गया। डेटा पहुंचा अभी नहीं पहुंचा, अभी डेटा अभी पहुंचना बाकी है, तो योर डेटा विल बी सेंडेड लेटर, मतलब थोड़ा उसी के बाद में फॉरन वो डेटा सेंड करेगा मोबाइल नोड को, एंड योर मोबाइल नोड विल एक्नॉलेज द डेटा, पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा आपके एक्सेस पॉइंट को वापस। However, this acknowledgement is only used by the foreign agent only। okay, but still if the packet is lost on the wireless link due to the transmission error, cause of any reason, if the packet is lost between the wireless TCP, then क्या होगा, the correspondent host would not notice this। correspondent node ने तो इसको डेटा सेंड करके फ्री हो गया। फ्री कैसा हो गया, यहाँ पे डेटा सेंड कर दिया, इसने इसको एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। when your correspondent node will receive an acknowledgement from the access point, so what it will think कि भाई मेरा डेटा तो पहुंच गया, अभी इसने डेटा आगे सेंड किया। जब डेटा आगे सेंड करेगा और बीच में आपका पैकेट क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, आपका पैकेट बीच में लॉस्ट हो गया। लॉस हो गया तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ नहीं पाएगा, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ नहीं पाएगा। जस्ट यहाँ पर थोड़ा फोकस करो, मैं जो पहले आपको समझाना चाह रहा था वो आपको इस पॉइंट में आराम से मिल जाएगा। सो after receiving the packet from the correspondent node, your access point will try to send the data to the mobile node। okay, and after that your mobile node will send the acknowledgement to the access point, तब जाके पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन क्या हुआ, जब एक्सेस पॉइंट भैया मोबाइल नोड को जब पैकेट सेंड कर रहे थे, एंड एट द सेम टाइम योर पैकेट गेट्स लॉस्ट। ठीक है, योर पैकेट गेट्स लॉस्ट, और लॉस होने के बाद में क्या पता चला कि जब वहां से एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो आपके एक्सेस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, your foreign agent has to retransmit the data। your foreign agent has to retransmit the data। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ पर वापस से डेटा रिट्रांसमिट करना ज्यादा आसान है
कि यहाँ से यहाँ तक डेटा रिट्रांसमिट करना ज्यादा आसान है। ये पूरा डिस्टेंस आपका बड़ा है कि ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, यू कैन इजीली से। इसीलिए रिट्रांसमिशन इज गुड इन आईटीसीपी। ओके, आईटीसीपी के अंदर रिट्रांसमिशन इसीलिए बहुत अच्छा है और कम ड्यूरेशन में हमारा हो जाता है। देखो यहाँ पैकेट लॉस हुआ था आपका, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, ट्राई टू फोकस ऑन दिस। यूर सीएन वांट्स टू सेंड द डेटा टू द मोबाइल नोड, ठीक है। सीएन तो ये समझता है कि ये मेरा मोबाइल नोड है, ठीक है, तो इसने इसको डेटा सेंड कर दिया और आपके एक्सेस पॉइंट ने इसको एक्नॉलेज भी कर दिया। ओके, आफ्टर एक्नॉलेजिंग द सेम पैकेट, ओके, व्हाट इट विल डू, इसने अपने पास में स्टोर करके रख लिया था पैकेट को, ठीक है। इट buffers the data also at its own level, okay, and it will try to send the packet to the mobile node. अब क्या हुआ, डेटा सेंड करते समय, पैकेट सेंड करते समय पैकेट बीच में लॉस्ट हो गया, ठीक है, पैकेट आपका लॉस्ट हो गया। अब लॉस्ट होने के बाद में क्या करना पड़ेगा, जब लॉस्ट हो जाएगा तो यहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो योर एक्सेस पॉइंट विल थिंक दैट के भाई मेरा पैकेट कहीं तो लॉस्ट हो गया है। ओके, जब लॉस हुआ है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने ऑफर में से निकालेगा पैकेट और वापस से डेटा को क्या करेगा, सेंड करेगा, वापस से डेटा को सेंड करेगा। अब जब ये सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो उसका क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। और जब एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद में एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, इस बफर में से इस पैकेट को क्या कर देगा, अरे बोलो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है, क्योंकि काम हो गया है। मैंने आपको बताया था ना कि हर नोड के ऊपर सेंडर रिसीवर, when sender sends the packet it saves the copy, it saves the copy at its buffer, और सेव करने के बाद में क्या होगा, when it will get the acknowledgement of that same packet, then only it will remove that from the buffer, ठीक है। सो जब तक वो सक्सेसफुली सेंड हो नहीं जाता, उसका एक्नॉलेजमेंट आ नहीं जाता, तब तक के हमारे पास में उसकी एक कॉपी रखना पड़ती है। दैट इज द सेम थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू। ओके, हाँ, कुछ एडवांटेजेस है आपकी आईटीसीपी के, ठीक है, ये पूरा सेटअप आप लोग समझे होंगे। मैं इसके लिए आपको पेन पेपर पे बताना मुनासिब मुझे लगा कि आपको इस पर ही बताना चाहिए, बिकॉज वो खाली स्टेटमेंट से आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पूरा सेटअप आप लोग का भी समझा होगा, आई होप। कुछ एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस क्या है हम लोग देख लेते हैं फटाफट। एडवांटेजेस, the very first advantage, ITCP does not require any changes in the TCP protocol। देखो आपके एग्जिस्टिंग टीसीपी में कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ITCP does not require any change in the TCP, आपको बाद में याद रहेगा, notes you can refer it later। So ITCP does not require any change, that is very important, okay, तो ये advantage है हमारे लिए। Second point है, second advantage, due to the strict partitioning into two connection, transmission error on the wireless link, that is lost packet cannot propagate into the fixed network। तो आपको समझ में आ रहा है भाई, ये पार्टीशनिंग करने से फायदा क्या हुआ, पार्टीशनिंग करने से फायदा ये हुआ कि ट्रांसमिशन एरर्स जो होते थे आपके, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर ट्रांसमिशन एरर आया, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका पैकेट लॉस हुआ, ठीक है, तो ये जो आपका रायता है, वो रायता पूरे नेटवर्क में नहीं फैलेगा, वो कहाँ फैला, सिर्फ यहीं पर फैला। तो उसका जो इम्पैक्ट था, उसका जो नुकसान था, उसका जो लॉस था, वो यहाँ पर नहीं इम्पैक्ट हुआ, उसका इम्पैक्ट खाली यहीं पर हुआ। अच्छा, आप बोलेंगे सर इससे मतलब क्या हो सकता है, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते थे, एक लॉस्ट हुआ, हो सकता है फिर ये आपका फॉरेन एजेंट ये समझ जाए, एक्सेस पॉइंट ये समझ जाए कि भाई कहीं ना कहीं आगे चल के कहीं ना कहीं कंजेशन हुआ है, तो चलो ठीक है मैं नहीं भेजता हूँ, और वो क्या करेगा फिर स्लो स्टार्ट कर देगा, तो ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन यहीं पर फैला, अगर कभी यहाँ पर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी होता, तो हो सकता है आपका करस्पॉन्डेंट नोड ये समझे कि भाई आगे कहीं पर कंजेशन हो गया है, आगे कहीं पर कंजेशन हो गया है, तो क्या करता है ये अपना स्टॉप कर देगा या स्लो स्टार्ट करेगा, व्हाटएवर। तो इसका इम्पैक्ट पूरे नेटवर्क पर नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ आपके वायरलेस पार्ट पर आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट पार्टीशनिंग इनटू टू कनेक्शन, ये आपका है फिक्स्ड और ये है आपका वायरलेस, ठीक है। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट पार्टीशनिंग इनटू टू कनेक्शन, योर ट्रांसमिशन एरर
इस तरह कौन है? ठीक है। So transmission error will not spread into the whole network. ठीक है, your transmission error will not cannot propagate into the fixed network. तो खाली वायरलेस में रहेगा, फिक्स में नहीं जा पाएगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड एडवांटेज और कर सकता है, it is always dangerous to introduce new mechanism into a huge network without knowing exactly how will they behave, how they will behave. So without knowing this thing, we cannot introduce the new concept, the new technology, the new patch, the new update into the existing one, because it may happen that के new वाला जो है आपका, सॉरी, न्यू वाले की वजह से जो पुराना वाला है वो भी काम करना बंद कर दे. वी हैव ऑलरेडी सीन इन द पार्ट ऑफ द जीएसएम, यूटीआरएन वगैरह हम लोग ने वहां पर देखा है. ठीक है, कि जब भी आप कुछ न्यू चीज लाते हैं तो एकदम सोच समझ के लाई जाती है. ठीक है, सो थर्ड वाला एडवांटेज है, आपको स्लाइड में सब मिल जाएगा. ठीक है. Partitioning into two connection always allow the use of the different transport layer protocol between the foreign agent and the mobile host. तो यहाँ पर आपके अलग अलग प्रोटोकॉल यूज हो सकते हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग टू डिफरेंट पर्टिकुलर सेक्शन, एंड दीज टू डिफरेंट सेक्शंस आर नथिंग बट द वायरलेस पार्ट एंड योर वाइड पार्ट. सो एट द वाइड पार्ट क्या होगा आपका, दूसरे आपके जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है वो दूसरे यूज होंगे, दूसरे एल्गोरिथम यूज हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ और यूज होगा. तो यहाँ पर आपका जो है ना लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है बेसिकली. ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेजेस है. तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं. उसके बाद में कुछ हम लोग एक दो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं. The loss of the end-to-end semantic of TCP might cause problem if the foreign agent partitioning the TCP connection crashes. तो बेसिकली भाईजान आपका जो वापस मुझे मैं बताना चाहूँगा, तो बता देता हूँ. ये आपका मोबाइल है. ठीक है, मोबाइल को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज मोबाइल नोड, MN लिखता हूँ, एंड दिस इज योर, ये आपका कंप्यूटर है. तो ये आपका हो गया फिक्स्ड, या फिर क्या बोलूंगा मैं, करस्पॉन्डेंट नोड. ठीक है, CN. तो ये MN है, CN है. ओके, एंड यू हैव अ एक्सेस पॉइंट ओवर हियर. ठीक है, तो ये इसको कनेक्ट है. जब भी आप ये वाला सिंबल देखें, फ्लैश वाला सिंबल, सो यू जस्ट थिंक दैट के दिस इज द वायरलेस कनेक्शन और वायरलेस लिंक, एंड यहाँ पर जो आपका है ये आपका फिक्स नेटवर्क है. ठीक है, वाया टू राउटर्स दे आर कनेक्टेड. सो ये आपका फिक्स्ड है, एंड दिस इज द वायरलेस. अगेन मैं डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग को डायग्राम जब बार बार देखेंगे तो आप लोग भी आराम से बार बार आपको देखने से याद हो जाएगा. एक्सेस पॉइंट और फॉरेन एजेंट. ओके, सो ये अगर आपका एक्सेस पॉइंट, अगर आपका ये वाला अगर क्रैश होता है तो क्या होगा, ये अगर एक्सेस पॉइंट अगर आपका लॉस होता है तो आपका क्या लॉस होगा मालूम? सबसे पहला डिसएडवांटेज, एंड टू एंड सिमेंटिक. एंड टू एंड सिमेंटिक मतलब एंड टू एंड जो रूटीन है आपका CN ने सेंड किया, एक्सेस पॉइंट को मिला, एक्सेस पॉइंट ने इसको एक्नॉलेज कर दिया, चलो आपका डेटा पहुंचा, इसने इसको एक्नॉलेजमेंट कर दिया, डेटा यहाँ पर आ गया. एक्सेस पॉइंट अब क्या करेगा, मोबाइल नोड को सेंड करेगा, मोबाइल नोड उसको रिप्लाई करेगा. तो ये क्या है आपका एंड टू एंड सिमेंटिक है. दिस एंड टू एंड सिमेंटिक विल बी लॉस ऑफ एंड टू एंड सिमेंटिक. लॉस ऑफ एंड टू एंड सिमेंटिक, ये आपका पहला डिसएडवांटेज है. ठीक है, हाँ, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि अगर कभी आपका एक्सेस पॉइंट क्रैश होता है ड्यू टू क्रैश ऑफ फॉरेन एजेंट और एक्सेस पॉइंट, एंड टू एंड सिमेंटिक का लॉस हो जाएगा. ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, increased handover latency may be much more problematic. Okay, because your mobile node is not will not situate at the different location. At one location it may goes to the different location. Okay, आज मोबाइल नोड यहाँ पर है, ट्रैवल करके मोबाइल नोड यहाँ पर चला गया, ट्रैवल करके मोबाइल नोड यहाँ पर चला गया. So it may travel at different location. Okay, so in practical we can say that increased handover यहाँ से यहाँ किया तो फिर यहाँ का जो एक्सेस पॉइंट होगा उसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ का एक्सेस पॉइंट होगा उसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड ऑल द एक्सेस पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू द वाइड नेटवर्क आल्सो. ठीक है, तो ये जो इंक्रीज है, जो इंक्रीज लेवल ऑफ हैंडओवर्स है, यहाँ से यहाँ किए तो हैंडओवर हो गया, फिर यहाँ से किए तो फिर हैंडओवर करना पड़ा. तो इन प्रैक्टिकल यूज इंक्रीज्ड हैंडओवर लेटेंसी may be much more problematic. Why? Because while shifting or while transmitting the data, if you are making the handover, then it is not mandatory that all the files which are in the queue will be transferred safely.
हो सकता है उसमें कुछ पैकेट लॉस भी हो जाए। तो आपकी जो लेटेंसी है, दैट लेटेंसी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में द फॉरेन एजेंट मस्ट बी ट्रस्टेड एंटिटी बिकॉज द टीसीपी कनेक्शंस एंड एट दिस पॉइंट ओनली। तो भाई सबसे सही बात तो ये बोलूँ मैं आपको कि आपका जो एक्सेस पॉइंट है, आपका जो एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट जो ये आपका बीच वाला बंदा है, आप बोलते हैं ना भाई एजेंट से बात कर रहे हैं आप लोग रियल एस्टेट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी और चीज के लिए, काम के लिए, तो एजेंट जो है या जो आपको कोई भी काम करवाना है गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं पर भी आपको कुछ काम करवाना है, सो वी हैव लॉट ऑफ एजेंट्स, ओके। सो वी कांटेक्ट देम डायरेक्टली, सो वी कांटेक्ट, हम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एजेंट से कांटेक्ट करते हैं। एजेंट क्या काम करता है, अंदर जाके ऑफिस में जाके हमारा काम करता है। तो ये क्या होना चाहिए आपका एक्सेस पॉइंट, इट मस्ट बी द ट्रस्टेड वन, ठीक है। तो आपका एक्सेस पॉइंट या फॉरेन एजेंट ट्रस्टेड होना चाहिए। और उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं दैट वी वोंट गो इनटू द डीप, बट उसका डिसएडवांटेज ये भी है कि ये ट्रस्टेड अगर नहीं हुआ तो हो सकता है ट्रस्टेड एक का एक ये भी है पॉइंट कि अगर कोई यहाँ से इवेज ड्रॉप करे, अगर कोई यहाँ से लीक करे इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक हुई तो आपके जो पैकेट्स है वो क्या हो सकते हैं, इवेज ड्रॉप हो सकते हैं, और आपके आपके जो पैकेट्स है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कोई भी इसको क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। सो यहाँ से इवेज ड्रॉपिंग ना हो इसके लिए आपका जो एक्सेस पॉइंट है ये ट्रस्टेड होना चाहिए, ओके। सो दीज आर फ्यू डिसएडवांटेजेस आल्सो व्हिच वी कैन कंसीडर फॉर दिस आईटीसीपी, ओके। तो इसके हमारे एक टॉपिक कवर करते करते हम लोग को टाइम लग गया, दैट इज आईटीसीपी। समझ आप लोग को समझ रहा है क्या नहीं, ये इस वे में हम लोग जा रहे हैं तो फर्स्ट लेट मी नो आप लोग को समझ रहा है क्या नहीं। मैं आप लोग के कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूँ, देखना पड़ेगा। Okay, if you are getting the thing then it's okay. In this lecture we have done only the first one, that is ITCP. Hope we can start with the next one, that is snooping TCP. The second is snooping TCP. स्नूप करना मतलब बोलते हैं ना छुप के देखना और ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, ठीक है। मॉनिटरिंग बोलते हैं, मॉनिटर, ऑब्जर्व, ठीक है। जिसको अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि थोड़ा सा छुप के देखना, ठीक है। सामने वाला क्या कर रहा है वो आपको अगर देखना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको स्नूप कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट ओवर हियर। नहीं, दो लेक्चर तो नहीं ले रहा हूँ मैं दीपक, लेकिन मैंने देखा ही नहीं, 10:47 हो गया। इसके बाद का लेक्चर किसका आपको पता नहीं। हाँ, मैं लेक्चर ले भी लेता था, लेकिन एक्चुअली मेरा थर्ड ईयर में भी लेक्चर है, फिर तो मुझे इसके लिए भी थोड़ा कुछ काम करना है, वरना मैं लेक्चर ले लेता था आप लोग का। ये थर्सडे, आज थर्सडे है ना, अच्छा बराबर हम लोग ने स्वैप किया था, हमारा उसके साथ में स्वैप किया था। मैं आपका डीएसआई पे लिखा लेक्चर है, लेकिन मैं अभी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले सकता उसके लिए, सॉरी। तो चलो ठीक है, हम लोग स्नूपिंग टीसीपी को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ ना, एग्जाम में ये दो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, दैट इज आईटीसीपी एंड स्नूपिंग टीसीपी, ठीक है। आईटीसीपी एसटीसीपी आते हैं, इसके बाद में और एक है आपका मोबाइल टीसीपी, ठीक है। ये जो तीनों आपके टॉपिक्स है ये ज्यादा इन्हें के क्लासिकल टीसीपी इंप्रूवमेंट्स में से ये टॉपिक ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पे ज्यादा फोकस करना है। ये एक बार हो गया तो फिर आप लोग आराम से इसका लिख सकते हैं।